दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। जो टैलेंट लेके आएगा तो Hello, Namaste, Kasakai. Welcome to season 2 of Technology Superstars, brought to you by Taiwan Excellence. This is a platform where technology meets comedy. तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है ना टेक्नोलॉजी और कॉमेडी का, ये कितना धमाकेदार होता है हम सब ने सीजन 1 में देख लिया था। तो दिस टाइम वी मेड इट बिगर एंड बेटर एंड वी इनवाइटेड कॉमेडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू कम हियर एंड डिस्प्ले देयर कॉमिक टैलेंट्स। तो दोस्तों ये साल जो है ये थोड़ा सा वियर्ड रहा है नहीं हम सब के लिए। बट एक बात बताओ, इस साल हमने ये जो लॉकडाउन था ये एक चीज़ के सहारे बिताया है, वो है टेक्नोलॉजी। और जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो टेक्नोलॉजी में एक ही माई बाप है, which is Taiwan Excellence. Taiwan Excellence is known not just for their innovative thinking, their design and technology, but also for being that country which has showed the entire world कि एक पैंडेमिक को कैसे हराया जा सकता है सिर्फ मास्क पहन के। तो जब एक ऐसे कंट्री ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो हमने सोचा why not take it to the next level. So we bring to you season 2 of Technology Superstars, brought to you by Taiwan Excellence. हमारे जो जज है ना, ही इज अ लेजेंड ऑफ द इंडियन स्टैंड अप सीन. ही वॉज द विनर ऑफ CEO's Got Talent. He has millions of followers on social media. You know who I am talking about. Give it up for the man, the legend, the one and only, Mr. Atul Khatri. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। Thank you so much for having me here. Welcome to the show, sir. Sir, कैसा लग रहा है? How does it feel to be finally out in the lockdown? Feels good to see audience. लगता है कि Zoom से बाहर निकल के सब आए हैं. So feels good that to see actually a live audience. Thank you Taiwan Excellence for this opportunity. So one question I've been waiting to ask you is that you were a CEO in your previous life. I mean, I call it a previous life because Actually, a previous life, हाँ. तो इतना सीरियस माहौल था वहाँ पे, वहाँ से आप कॉमेडी में आ गए. How did the change happen? वो बोलते हैं ना दर्द से खुशी निकलती है. तो वो जो CEO लाइफ का जो कॉर्पोरेट लाइफ का जो दर्द था, आई थिंक उसमें से वो पेन, उस ट्रॉमा से आई थिंक हंसी निकली. Yeah. But sir, comedy isn't it supposed to be a young man's field? But you started at the age of 44. Correct. But you still made it big. तो क्या है? What is the reason behind your success? I think I had a longer timeline because for a 17-year-old comedian उसके पास होता है school life, college life, dating life, Tinder वगैरह. I had a longer timeline. I had wife, I had one wife, sorry. I had girlfriends. I have a Tinder account. तो सब वो same था, but I had a longer timeline, so I think made it more easier. So what do you think about this combination of technology and comedy? I think it's amazing because as you said it already कि especially lockdown में तो we were so reliant on technology. Technology ने हमको बचाया. So I think taking two such good things like technology and humor उसको mix करके उसका एक competition बनाना, thank you Taiwan Excellence. And for the second season, and I think the best part of the second season was हमने काफी virtual contestants भी देखे. Right. So I think that's now the world is the stage actually. So one last thing. What are your expectations from all the comedians tonight? See, I'm expecting very simple. In a comedy show, I expect you to just make me laugh. So this as simple as that, and just enjoy your time on stage. I think so simple. Yeah. So sir, without wasting any time, let's get started. Yes. So let's go to our tables Okay. and let's call upon the first comic. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। All right. So पहले contestant का थोड़ा सा introduction मैं दूंगा. बिल्कुल. तो ये पुणे से आया है. हाँ. भरते हुए टोल. हाँ. इसके पंचलाइन से होता है लोगों का डब्बा गोल. वाह वाह. आकाश गौरव सिंह जा और अपनी कॉमेडी का पिटारा खोल. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। अच्छा एक बात बताओ, हॉरर मूवी देख के कितनों को डर लगता है यहाँ पे? हाँ तो वो बनाए इसलिए जाता है कि डरो। लेकिन जो हॉलीवुड की हॉरर मूवी है ना, वो देख के मुझे कभी डर नहीं लगता. समझ नहीं आया क्यों? क्योंकि उसमें जब भूत ऐसे दीवार पे क्रॉल करते हुए जाता है ना और 360 डिग्री में पलटता है और 3D इफेक्ट के साथ उसका शक्ल मेरे सामने आता है, तो उस समय मैं सबटाइटल पढ़ रहा होता हूँ. तो भूत का ऐसे कट जाता है. लेकिन मेरे मामा जी हैं, वो आज भी राज 1 देखते हैं, बिंज वॉच लगातार वही देख रहे हैं. उनको बोले कि कंज्यूरिंग देखिए, ये सब बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवी आ गई है, क्या ये राज में रखा है?
तो बोलते हैं फील नहीं आता है। कह रहा अरे भूत जो है एकदम साड़ी में आए और आके पास में बोले कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तब साला दिल से आवाज निकलता कि हाँ हम बर्बाद होना चाहता हूँ। और अभी क्या है, कुछ महीने पहले वो मेरे घर पे आए थे, उसका लॉकडाउन लग गया तो मामा जी घर पे ही रुक गए। और मामा जी और पापा लोग मिलते हैं ना तो शाम में पेग वेग लगाने लगते हैं, मैं वहीं चकना बनाता हूँ, अपने को अलाउड नहीं है। तो वहीं पे बैठ के वो अपना पेग लगा रहे थे। मेरे पापा क्या फिलोसफिकल हो जाते हैं सर, 7 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो इस टाइम में उनका बनता भी है फिलोसफिकल होना। तो वो पेग लगाते लगाते बोलते कि जानते हो कुछ नहीं रहा है अपने को ऐसे नौकरी वोकरी में, कुछ अलग करना पड़ेगा खतरनाक। तो मामा जी पूछ रहे क्या करेंगे? बिजनेस कर दिया ना, छोटी बात। अरे धंधा करोगे? हम लोग करेंगे कुछ खतरनाक नया चीज हमारे दिमाग में आया है, एंटरप्रेन्योरशिप। हिमाचल से लाएंगे सेब, एप्पल, पुणे में लैंड कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फायदा होगा, बहुत फायदा है उसमें। तो मामा जी खुश हो गए। हम बोले इतना खुश मत होइए, 2 पैक लगाए हैं, हिमाचल से सेब ला रहे हैं, 2 पैक और लगाएंगे, अफगानिस्तान से हथगोले लाएंगे। अरे 2 दिन पहले उनको जेडीपी ला रहे थे, जेडीपी के पूछते हैं आईपीएल का टीम कब खरीदोगे। और पापा लोग के साथ क्या है ना, उनका बेटा, जब इंडियन फादर के साथ दिक्कत है कि उनका बेटा टेक्नोलॉजिकल फील्ड में कुछ काम कर रहा है, उनको लगता है कुछ तोप ही कर रहा है। मैं खुद अभी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मुझे हमेशा ये लगते रहता है कि सच में मैं मास्टर शेफ होऊंगा आईटी कंपनी का। लेकिन जब भी अपने बॉस का शक्ल देखता हूँ ना, मुझे लगता है ये आदमी मुझे रामू काका बना के रखे। मतलब ऐसा था, नया नया ज्वाइन किया था सर मैंने जॉब, तो उसमें ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता, फ्रेशर था। तो बोलता है तुम्हारा क्लाइंट इंटरेक्शन है, अंदर चले जाओ कॉन्फ्रेंस रूम में। मैं चला गया अंदर, बहुत देर तक बैठा, कोई नहीं आया वहाँ पे। मैं बाहर निकल गया, बोला क्यों बाहर आ गए? हम बोले कोई था ही नहीं अंदर। बोलता है रामू काका जैसा बिहेव मत करो। अंदर टेबल पे तुमको एवर कंपनी का पीटीजेड कैमरा रखा है, ट्रैकिंग कैमरा। हाँ तो उसी से होगा तुम्हारा ऑनलाइन, ऑन साइट से आएगा नहीं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो हम कहे ठीक है, हम अंदर जाके बैठ गए। और कैमरे की क्वालिटी इतनी तगड़ी है सर कि क्लाइंट पहला सवाल पूछ रहा है कि आर यू ड्रंक। तो हम बोले नो नो, इंडिया पॉल्यूशन, आईज रेड है। उसके बाद उसका सवाल बहुत टफ था सर, टफ सा प्रोग्रामिंग दे दिया। उसके बाद बोलता है एंड एज्यूम देयर इज नो गूगल, हाउ यू विल डू इट। हम कह राउटर चेक करेंगे, क्या पता नेट नहीं आ रहा हो। तो ऐसे ऐसे बहुत टफ सवाल पूछते हैं सर आजकल इंटरव्यूज में। मतलब एक बैंकिंग कंपनी में गया था सर, 12 राउंड इंटरव्यू, खुद पे भरोसा नहीं है उनको। मैं क्लीन सेव्ड गया था, दाढ़ी वापस आ गई थी मेरी। अभी एक छोटी सी कंपनी है सर, स्टार्टअप कंपनी, उसमें 4 एम्प्लॉय होंगे गिन के। वहां इंटरव्यू देने गया था, 6 राउंड इंटरव्यू। हम कहे 2 लोग कहां से लाए हो? ध्यान से देख रहे, लास्ट वाला राउंड टपड़ी वाला ले रहा है, एप्टी चेक कर रहा है कि उधारी चुका पाएगा कि नहीं। कभी कभी सोचते हैं ना, ऐसे पान वाला दुकान खोल के टपड़ी वाला बन जाना चाहिए। वो अपनी मर्जी से दुकान खोलते हैं, निर्मल बाबा जैसा कुछ भी वो बहस करते रहते हैं, किसी को भी सुनाते रहते हैं। तो मेरे घर के सामने एक टपड़ी वाला है सर, मैं वहां पे गया, अच्छा सेटअप है, सब कुछ स्टिकर लगाया, उधारी मना है, चलो ठीक है। उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया, दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। हम के साले ऐसा क्या चोरी हो जाएगा तेरा? बोलता अरे नहीं भैया जी, वो तो खाली डराने के लिए है, कैमरा थोड़ी लगाए हैं, इससे क्या है डर बना रहता है, लोग लाइटर चुरा के नहीं भागता। हम बोले भाई ऐसा नहीं है, तुम भी लगा लो सीसीटीवी कैमरा, उसमें भी पीटीजेड की फैसिलिटी है। बोलता ये मतलब क्या होता है? हम कहा पैन टिल्टो जूम। बोला पैन क्या होता है? हम कहा कैमरा चारों तरफ घूमेगा। तो बोलता भैया जी एक साइड तो हम ही बैठे रहेंगे। हम बोले कोई नहीं, ले लो, अच्छा कैमरा है। कुछ दिन बाद देखे सीसीटीवी लगा लिया। हम कहा अच्छा है, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। तो देख रहे बोर्ड पे को क्या लिखा हुआ है सीसीटीवी लगाने के बाद, दिस एरिया इज नॉट अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। हम बोले पगला गए, कैमरा लगा के कहा नॉट लगाओ। तो बता रहे नहीं नहीं क्या है, अब लोग निडर होकर लाइटर चुराएगा, हम उनको पकड़ लेंगे। बाद में वो कैंडिडेट बन के आएगा इंटरव्यू देने, उसको लगेगा कि एप्टी में वो रिजेक्ट हुआ है, लेकिन उस ससुर के तो हम लॉयल्टी टेस्ट में ही फेल कर दिए थे। लेकिन एक बात बता भैया जी, 2 हफ्ता पहले आप भी लाइटर लेके भागे थे, वापस किए नहीं है। वापस दे दीजिए, इंटरव्यू में हो जाएगा, कृपा वहीं अटकी हुई है। दिस वाज माय सेट, थैंक यू गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। Akash, great set. Loved the confidence, loved the energy. You had like, you're consistent throughout, right from the beginning, right from the first joke to the last joke. Great stuff. थैंक्स मंदार। आकाश, मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं मिर्जापुर के कोई कैरेक्टर को सुन रहा हूँ। बट नहीं, आपका आई लाइक योर वॉइस, आई लाइक योर ओरिजिनल वॉइस जो है आपका। कहाँ से हो आप वैसे? सर मैं पटना से हूँ। अच्छा, बिहार से, फैंटास्टिक। सो ऐसा लग रहा था कि वो अर्धी वॉइस आपकी निकल रही थी, द लिंगो, द टर्म्स विच इज सो इम्पोर्टेंट नाउ, बिकॉज एज यू नो कॉमेडी, जैसे ताइवान एक्सलेंस नाउ टेकन कॉमेडी थ्रू आउट इंडिया,
So getting such fresh voices very good. I loved your set. जिस तरह आपने वो टेक्नोलॉजी को भी आपने इंटीग्रेट किया, बहुत अच्छी तरह सुंदर तरह से आपने उसको इंटीग्रेट किया. इतना टाइम वेट करके आपका फर्स्ट सेट था और आई थिंक यू सेट द बार फॉर द रेस्ट ऑफ एवरीबॉडी. Thank you. ऑल द बेस्ट. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा. आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका. ये दिखता है बेचारा पर है बड़ा शाना. वाह. अगर दुनिया अंधों की है तो ये है काना. प्लीज गिव इट अप फॉर द वेरी फनी अर्जुन राणा. ओह. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा. आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका. सर अभी मेरी शक्ल देख के आपको लग नहीं रहा 5 नंबर तो मेरे को अभी मिल जाने चाहिए? और ये प्रोडक्शन वालों ने काम खराब किया है मेरा मेकअप करके. पहले मैं 10 नंबर लेके घूम रहा था चेहरे पे अपने, पता है. नो बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू दीज पीपल. मुझे जानता है कोई? पता नहीं यार, मैं सवाल पूछता ही क्यों ये. नहीं, 3 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत फेमस हूँ मैं. इतनी खराब आदत हो गई है, मैं हर जगह पूछ रहा हूँ ये सवाल. एक बार एक पार्टी में पूछ लिया मैंने, मुझे जानता है कोई? वहां भी कोई नहीं जानता था. फिर थोड़ी देर बाद जाके जब मैंने केक काटा, नहीं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जानता कोई नहीं है. और मेरा ये हाल तब है जब मैं YouTube पे 2 वीडियोस डाल चुका हूँ. साला कोई देख ही नहीं रहा मेरे वीडियोस यार. और इतना खराब लगता है ना कसम से, बिकॉज सर वीडियोस अच्छे हैं, पता है. मतलब अब तक जितने भी लोगों ने देखे ना, उन दोनों ने बताया उनको भाई बहुत पसंद आया. और पहले मेरे को लगा दोनों झूठ बोल रहे होंगे यार, लेकिन इंसान अगर अपने माँ बाप की बात का भरोसा ना करे तो फिर मतलब मम्मी ने तो लाइक भी किया बाकायदा. नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट सर, व्हेन आई वाज पुटिंग अप द वीडियो में बहुत नर्वस था, बहुत एंशियस था, बिकॉज इतने लंबे टाइम से कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. और एक चीज़ नोटिस की, कितना भी क्लीन कंटेंट क्यों ना हो, एक ना एक भाई साहब होते हैं जो बुरा मान जाते हैं. फिर वो कमेंट सेक्शन में आके कॉमिक को गालियाँ निकालते हैं. फिर कोई दूसरा आता है, वो कॉमिक को डिफेंड करता है, वो इनको गालियाँ निकालता है, ऐसे करके झगड़ा चालू हो जाता है. और मैं नहीं चाहता था कि मेरे वीडियो पे ऐसा कुछ हो, तो मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए. सर कोई रिलीजियस जोक नहीं, कोई पॉलिटिकल कुछ नहीं, मेरे सारे जोक्स मेरे ऊपर. मैं 2 कौड़ी का आदमी, मेरी शक्ल घटिया. एंड टू माई सरप्राइज सर, एक भाई साहब इसका भी बुरा मान गए. वो कमेंट सेक्शन में आके लिख रहे हैं, अबे ओ जितना तू बोल रहा है ना साले, उतनी बुरी भी है नहीं तेरी शक्ल. फिर एक दूसरे भाई साहब है मेरे को डिफेंड करने के लिए, वो इनको गालियां निकाल रहे हैं. कहते हैं अंधा है क्या, गौर से देख उसकी शक्ल है घटिया साले. बट सर मैं हमेशा से ये कॉमिक या यूट्यूबर नहीं बनना चाहता था. लाइक जब मैं छोटा था, कोई पूछता था बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो मेरा छोड़ो, मेरी पूरी जनरेशन का एक ही जवाब होता था, एस्ट्रोनॉट. फिर अगला सवाल आता था, एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग पता है? नहीं. बस बात वहीं खत्म हो जाती थी. बट आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं यार, वो शुरू से सॉर्टेड है, बहुत क्लैरिटी. लाइक मेरा बेटा है सर 8 साल का, मेरा खुद का 8 साल का है सर. वो एक दिन आके मेरी आंखों में आके डाल के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे से कहता है, पापा मेरे को प्रीडेटर चाहिए. मैंने कहा सुन बे, इस उम्र में तेरी शादी तो मैं करा नहीं सकता. तो कहता पापा ये जाहिलों जैसी बातें करते हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को. कहता एसर का गेमिंग लैपटॉप है प्रीडेटर, वो चाहिए मेरे को. मैंने कहा साले जिस चीज़ के नाम में गेमिंग आ रहा है, वो मांगते हुए भी शर्म नहीं आ रही तेरे को मेरे से? थोड़ा झूठ तो बोल. एसर एजुकेशनल लैपटॉप. मेरे को कौन सा फर्क मालूम है साले. सर जब हम लोग छोटे थे, हमको अपने माँ बाप से लेजिट चीज ओकेजन पे मांगने में फटती थी. लाइक बर्थडे पे मान लो गिफ्ट मांगना पापा, तो उसके लिए भी मम्मी का बैकअप लगता था. और मम्मी फायदा उठाती थी उसका. पापा पूछ रहा बर्थडे पे क्या चाहिए, मम्मी पीछे कह रही वॉशिंग मशीन मांग ले. तो 6 साल का बच्चा खड़ा होता है, पापा वॉशिंग मशीन चाहिए. पापा अच्छा वॉशिंग मशीन की स्पेलिंग आती है? नहीं. एक तो पता नहीं हमारे पेरेंट्स को स्पेलिंग से क्या ऑब्सेशन था यार. जिस चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती वो मिलेगी नहीं तुम्हें कभी. मैंने कहा पापा इस लॉजिक से तो मेरे को स्कूल की स्पेलिंग भी नहीं आती. वहाँ तो रोज भेज देते हो तुम. इतना कहने पर तो लपड़ पड़ जाता था. और आजकल के बच्चे आंखों में आंखें डाल के गेमिंग लैपटॉप. मैंने क्यों चाहिए गेमिंग लैपटॉप, क्या करेगा? कहता गेम खेलूंगा. थोड़ा तो झूठ बोल दे यार. पढ़ाई करूंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा, 100 बहाने हैं तेरे पास भाई. मेरे को भी तो पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आनी चाहिए ना. कल को कोई पूछे तो मैं बोल दूं यार मैं दिलाना नहीं चाहता, तुमने झूठ बोल के ले लिया. मैंने कहा अच्छा गेम खेल के क्या करेगा? कहता वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे डालूंगा. मैंने कहा यूट्यूबर बनेगा.
मैंने बन साले 3 साल तो मैं घिस रहा हूँ साला, आज तक मैं नहीं बन पाया। और मैंने कहा तेरे को यूट्यूबर ही बनना है तो घर पे लैपटॉप पड़ा, उस पर बना वीडियो। कहता कर दी छोटी बात बस। कहता एक चीज होती है क्वालिटी, नाम सुना है कभी? गूगल पे जाके सर्च करो, मीनिंग देखो उसका, और अगर हो सके तो अपने जोक्स में डालो, क्या पता तुम्हारे वीडियो भी चल जाए फिर। कहता मैं जो चीज मांग रहा हूं ना उसमें और नॉर्मल लैपटॉप में जमीन आसमान का फर्क है। फिर मेरे को अपना पुराना पैंतरा याद आया, मेरे सारे हथियार फेल हो चुके। मैंने कहा ठीक है, प्रीडेटर चाहिए ना तेरे को, स्पेलिंग आती है प्रीडेटर की। उसने सुना दी सर, बिल्कुल सही, मैंने खुद चेक किया गूगल पे। और मैंने खाली स्पेलिंग पूछी थी, वो फीचर्स गिना रहा है, इसमें हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, इसमें ग्राफिक कार्ड है, इसमें मैं चुप हो जा भाई, तो पूछा भी नहीं मैंने। कहता फालतू क्या मच कर रहा है यार, दिला के खत्म करो, 1 साल में तुम्हारा पैसा कमा के वापस कर दूंगा। और सर बाप कितना भी सख्त हो ना, जब बात पैसों की करता है बच्चा तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। मैंने दिला दिया, और 6 महीने के बाद सर लाइफ में पहली बार मैंने वो फीलिंग एक्सपीरियंस की, वो होती है ना प्राइड और शर्मिंदगी की मिक्स फीलिंग। उसके साले के मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यार। पिछले महीने उसने सारे पैसे वापस कर दिए मेरे। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। Arjun, thank you so much for this amazing set. I loved how you did the integration and you kept on and on with the Yes Sir Predator thing. I think Arjun, you were good throughout all the 3 rounds. Your audition entry was great. You were great in round 2, and you kept up the momentum. You kept up the level of performance in the finale. This was a performance fitting of the finale. So well done, Arjun. Wish you all the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा, आज है मौका टेक्नोलॉजी सुपरस्टार। तो आप सोच रहे होगे इसके बाद मंच पे आ रहा है कौन? ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये है दिल्ली का डॉन। Superb. Give it up for the very funny Garv Male. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा, आज है मौका टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। So hi guys, I'm going to share a story today जो मेरी लाइफ की बेस्ट टिंडर डेट रही है। बिकॉज उसने मुझे सीधा मिलने के लिए घर पे ही बुला लिया रात को 3 बजे। वो टाइम होता ना जब आप सारे एक्स को मैसेज करके थक चुके हो, और मैंने उसे समझाना चाहता था कि ऐसे रात को 3 बजे गुड़गांव में एक अनजान लड़के को घर बुलाना सेफ नहीं है। तो ये समझाने मैं उसके घर चला गया, और जैसे मैं उसके घर पहुंचा तो उसने अपना चेहरा ग्रीन कर रखा था यार। मैंने पूछा आज हैलोवीन है क्या? उसने बोला नहीं, ये है एनीज वे का मास्क, इट्स अ पार्ट ऑफ माई स्किन रूटीन। मेरा डेली रूटीन नहीं सेट हो रहा यार, इसका स्किन रूटीन चल रहा है। और स्किन के लिए इतनी मेहनत यार, लाइक औरतें इतना मेहनत करती हैं स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, मुझे बुरा लगता है उनके लिए यार, क्योंकि उसके बाद सैंड पेपर जैसे दाढ़ी वाले लड़कों के साथ मेकआउट करना पड़ता है। मैं तो लिप बाम भी नहीं लगाता, मेरे होठ इतने हार्ड हैं कि क्रिकेटर्स बॉल में से किस करा के लेके जाते हैं कि स्विंग हो जाए। अभी दिक्कत यह है कि उसके मास्क की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं पता ना वही लड़की है या नहीं। और उसके मास्क में एक तो उसने खूबियां बहुत बताई, बोलती जैसे ये कीवी मास्क है, वो मुझे भी सजेस्ट करिए कि तू ऑलिव लगा ले या बबल टी लगा ले। मैं कहा इतनी सारी खाने की वैरायटी यार, मैं तो पंजाबी हूं। मैंने कहा राजमा चावल वाला है क्या? वो बोलती है इससे स्किन ग्लो होती है। मैं कहा तुम स्किन से एलईडी लाइट वाली एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो यार? और दिक्कत यह है कि मेरा दिल थोड़ा छोटा हो रहा है इस समय, क्योंकि मास्क के साथ मेकआउट नहीं कर सकते ना। लाइक आप मास्क को छूने की तो सोचो ही मत। और पहली चीज तो आप ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट सेकंड बेस से स्टार्ट कर सकते हो। आप ऐसे मन में इमेजिन भी करोगे ना तो खुद मोलेस्टर वाली फीलिंग आ जाएगी। और मैंने एक बार अपनी बहन का फेस मास्क खराब कर दिया था, तो बदले में उसने मेरा फेस ही खराब कर दिया। ऐसे नेल से 3 लाइन बना दी थी, एडिडास का लोगो लग रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उसने मेरे को कन्विंस करके मास्क लगाया, और मास्क इतना ठंडा, ओहो, मुझे इतनी ठंडा कभी महसूस ही नहीं हुई थी यार। मैं 10 मिनट के अंदर अंदर सो गया, और मैं इतनी गहरी नींद में सोया कि सीधा अगले दिन सुबह मुझे उठाया उसके पापा ने। मेरी आंखें खुली तो आगे सामने अंकल बनियान में
गले में 2 गोल्ड चेन, उनका पेट मेरी शक्ल से ज्यादा लटका हुआ है, हाथ पे ऐसे सतबीर। मैंने कहा ओह मेरी तो ऑनर किलिंग पक्का है। पर फिर मैंने उसकी तरफ देखा, उसने सुबह उठ के ब्लैक चारकोल मास्क लगा लिया। अभी उसके माँ बाप को लग रहा है ये लिटरली मुंह काला करा के आई है। ये कितनी बड़ी मास्क की एडवोकेट है, तब तो कोरोना भी नहीं आया था। लाइक अब तो टाइम बदल गया है, क्योंकि अब तो बिकिनी भी 3 पीस हो गई है, पर ये तब से मास्क पहना रही है सबको। और मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे जाएगी बोल रही नहीं पापा मैं तो जानती नहीं, पता नहीं कौन आ गया। ऐसा कौन सा चोर होता है जो घर आके मास्क लगा के सो जाता है? मैं बड़ी मुश्किल से घर से निकला एंड आई थॉट दिस वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन दैट डे, बिकॉज मुझे लगा इससे ज़्यादा क्या ही होगा। बट नेक्स्ट वीक और बुरा हुआ, बिकॉज उसने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली अपनी सगाई की। मैं खुद कंफ्यूज था यार। मैं सीधा उसके पति के प्रोफाइल पे गया और मैंने कमेंट्स में जाके लिख दिया कि ये लड़की कभी तुम्हें असली शक्ल नहीं दिखाएगी। क्योंकि शादी वाली फोटो में भी उसने ऐसे वाला पोज बनाया हुआ था। That's been my time, guys. To start off with, you had a tough product, okay? It's difficult to make jokes on things that you don't use in your day-to-day life, but you still made a great set out of it. The callbacks were amazing, because जब वो पहली line तुमने बोली थी, I was like, ये line यहाँ पे क्यों है? But it came back as a callback in the end. So that was great. I think it could have ended on a high. Like that was great throughout. It just lacked that final, the final ambush was lacking. But otherwise, great job, girl. वेरी गुड। आपने एज ही सेड, एज मंदार सेड कि डिफिकल्ट प्रोडक्ट है फेस मास्क को इतना लंबा खींचने को। आई थिंक यू डिड एन अमेजिंग जॉब। ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। तो ये है दोस्तों के दोस्त, आहा, ये है यारों के यार। वाह, इनकी कभी नहीं होती हार, ओह वाह, क्योंकि उनके नाम में ही है जीत। वाह। So give it up for जीत मोदी। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। Hi. My name is Jeet. My surname is Modi. My full name is Jeet Jai Modi. मेरे माँ बाप ने मेरा नाम इलेक्शन के स्लोगन पे रखा है। मैं 1990s में बड़ा हुआ। आई ग्रो अप इन द 1990s। तब टेक्नोलॉजी बहुत अलग थी, हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तो हमने ऐसे मोबाइल फ़ोन को पैदा होते हुए देखा, उसे अपना पहला कदम लेते हुए देखा। हर हफ्ते हम बस यही कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन ने क्या नया डेवलपमेंट है, कहाँ क्या नया फीचर है। मतलब मोबाइल फ़ोन हम लोग के टाइम का तैमूर अली खान था। हाँ, यही टाइम पास था हमारी लाइफ में। तभी लॉकडाउन में हमारी लाइफ में टाइम पास क्या था पता है? हाँ, मेरी लाइफ में मैं पूरा टाइम फेसबुक गूगल करते रहता हूँ। मतलब इतना टाइम स्पेंड किया है फेसबुक और गूगल पे कि ये लोग मेरे बारे में अब सब जान गए। हाँ, इनके पास मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है, मतलब लोकेशन से लेकर डेस्परेशन तक सब। हाँ, मेरी माँ से ज़्यादा जानकारी फेसबुक के मार्क को है मेरे बारे में। हाँ, लेकिन आपको लगता होगा कि जिसके पास अपनी इतनी इन्फॉर्मेशन है उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट असल में ये लोग भी अपने पे ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, कभी भी अपना पासवर्ड बदलने जाओ ना तो गूगल पूछता है आपको, आर यू अ रोबोट? प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट। मैं बोला गूगल, मतलब आयरनी देख रहे हो ना? हाँ, गूगल मुझे पूछ रहा है कि मैं रोबोट हूं कि नहीं। हाँ, सीएए और एनआरसी के बाद अभी गूगल को भी आईडी प्रूफ देना पड़ रहा है मेरे को। तो मैं बोला अभी बता मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं रोबोट नहीं हूं? तो मुझे कैप्चा दिखाता है। कैप्चा मालूम है? हाँ, वैसे एक फोटो दिखाता है जिसमें से 9 बॉक्स बने हुए होते हैं। फिर वो मुझे कहता है अभी पहचान कौन से बॉक्स में टैक्सी है। तो मैं हर एक बॉक्स के पास जाके ऐसे करता हूँ, भाई साहब स्टेशन जाओगे क्या? स्टेशन कौन जाएगा? हाँ, जो भी मना करता है वो टैक्सी है। यार लॉकडाउन में एक प्रॉब्लम बहुत होगी, थिएटर में जाके पिक्चर नहीं देख सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने घर पे थिएटर बना दिया। ओके, मैं घर पे प्रोजेक्टर लेके आया। प्रोजेक्टर पता है ना, ऐसा सब फोटो आता है घर पे। हाँ, मैं लाया ऑप्टोमा 4K UHD प्रोजेक्टर। मतलब इसका नाम इतना लंबा है कि उसको देखने के लिए और एक प्रोजेक्टर लगेगा आपको। हाँ, आपको लग रहा होगा बहुत खर्चा किया मैंने इसके लिए। ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप थिएटर में जाओ, 10-15 बार पॉपकॉर्न खरीद लो, इतने में प्रोजेक्टर आ जाएगा। साथ में कोल्ड ड्रिंक खरीदा तो प्रोजेक्टर चलाने वाला भी आ जाएगा। असली प्रॉब्लम यह है ना कि हमारा घर बहुत छोटा है,
तो हम ये प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो दीवार मतलब हमें ऐसे 2 दीवारों पे करना पड़ता है, ऐसे एल शेप में, समझ रहे? तो टेनिस मैच देखते हैं तो आधे लोग नाडाल को देख रहे हैं, आधे लोग फेडरर को। दूसरी दिक्कत यह है कि जिस दीवार पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, वहां पे दादाजी की फोटो लगी है। तो अब कोई भी मूवी, कोई भी शो देख रहे हैं, उसमें दादाजी की शक्ल नजर आती है। हम रियलिटी शो देखते हैं तो ऐसा लग रहा है दादाजी बिग बॉस के हाउस में बैठे हैं। हम ऐसे टार्जन मूवी लगा के बैठे थे, उधर से टार्जन पेड़ पे लटक रहा है, बाजू में दादाजी दीवार से लटक रहे हैं। कोई भी मूवी के पहले वो मुकेश की कैंसर वाली ऐड आती है, दादाजी की तस्वीर के बाजू में मुकेश की तस्वीर लग जाती है, हार वाली। एक बार हम राजीव गांधी जी की मौत पे डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तब से ऐसे दादाजी की फोटो पे हार लगाने से डर लग रहा है अभी। और यार इंसान हूं, कभी कभी ऐसे ओल्ड बालाजी टाइप की चीजें भी देखने का मन करता है, तो फिर दादाजी की फेस पे ऐसे तौलिया लगाना पड़ता है हमको। एक बार तो हम न्यूज देख रहे थे, उस पर डिबेट चल रहा था, ऐसा लग रहा था दादाजी भी पैनलिस्ट बन के ऐसे एक कोने में बैठे हैं चुपचाप, क्योंकि एंकर उन्हें भी कुछ बोलने नहीं दे रहा है। लेकिन सही बात बोलूं, ये ऑप्टोमा का जो वीडियो क्वालिटी है ना, 4K अल्ट्रा HD वीडियो क्वालिटी, मतलब इतना क्लैरिटी है इसमें कि हम अपनी खिड़की, अपनी विंडो खोल देते हैं ना, तो सामने के बिल्डिंग वाले भी हमारे घर से मजा ले रहे हैं। सुबह 7 बजे बाबा रामदेव को चालू किया, वो लोग अपनी बालकनी में बैठ के योगा कर रहे हैं। शाम को तो ऐसे बोली लग रही है चैनल्स की। हाँ, हम ऐसे KBC का 100 रुपया लगा रहे, IPL का 200 रुपया लगा रहे, न्यूज़ चैनल का भी लगाने वाले थे, लेकिन वो ऑलरेडी बिक चुका है। एक्चुअली क्या है ना कि हमने बहुत पैसा कमाया है ऐसे, हमने अपने विंडो खोल के बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है। मतलब वी हैव अर्न मोर फ्रॉम ओपनिंग आवर विंडो देन बिल गेट्स हैज अर्न फ्रॉम विंडोज। अभी ये पैसे से ना मैंने क्या किया, अभी मैंने एक दूसरा प्रोजेक्टर खरीद लिया और वो मैंने अपने बेडरूम में लगा दिया है। हाँ, अभी मैं अपना घर को थिएटर बनाने चला था, अब मेरा घर मल्टीप्लेक्स बन गया है। एक दिन मैं अपने प्रोजेक्टर पे ऐसे हॉलीवुड की एक्शन मूवी देख रहा था, टर्मिनेटर। देखिए किसने? टर्मिनेटर। हाँ, उस मूवी की स्टोरी ये है कि 2020 तक रोबोट्स विल टेक ओवर द वर्ल्ड। हम 2020 में पहुंच चुके हैं। रोबोट्स हैव नॉट टेकन ओवर द वर्ल्ड। Instead, who has taken over the world are TikTok and Instagram influencers. Robots have not taken over the world. And there's a reason for that. मतलब वो अपने घर का कचरा साफ कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया को टेक ओवर नहीं कर पाए। और उसका एक रीजन है, बताओ क्या? वो कैप्चा में है ना, पहचान नहीं पा रहे कौन से बॉक्स में टैक्सी है। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय साइड। Hi Jeet, I loved your set. मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी कि जो that Optoma projector को you actually really stretched it. You know, I could imagine you created a very good visual for me where I could imagine that Optoma projector on your hall and your neighbors watching it. Jeet, great job done. Projector as such is a very boring and dry topic, but you made a great set out of it. I loved the content. I loved the premises. Where I felt you could have done better was with the performance. I felt you kind of stuttered at some places, but I can understand it's a new set. So, but anyways, wish you all the best and great job done. थैंक यू सो मच। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। तो इसके बारे में इतना ही बोलूंगा कि ये उम्र में है सबसे छोटा, अच्छा, पर कॉमेडी का दिमाग है इसका मोटा। वाह। Welcome on stage with a huge round of applause, the very funny Nathan Gomes. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। Check. Am I audible? Hi. All right. Before I begin, can all of you say hi on the count of 3? 1, 2, 3. Hi. Hi. It's good to be here. Let's do this. So my name is Nathan Gomes, as my Gujarati friends like to call me Nathuram Gomes. I happen to be the younger sibling of the family, which means I'm the one with the lowest amount of self-esteem. I studied in a state board school. And if you study in a state board school, right, you realize you learn this one important, amazing thing called nothing. The only thing you learn in a state board school is telling others that you study in a state board school. That's right, my subjects were history, geography. To be SSC ka kya? Here's something about me. I happen to be one of the top 25 comedians from Bombay. That's right. Here's something more about me. I happen to be this thing called a liar. But it's good. I come from a typical middle-class family. Like, we don't call it Ferrero Rocher. We call it Ferrero Rocher.
Typical, if you had to order food, it would be two things. One, butter chicken. Two, butter chicken only. I have eaten so much of butter chicken, my favorite cricket team is Kings 11 Mini Punjab. I have gained so much of weight in the lockdown, if I had to be casted in the movie 300 today, it would be called 302.5. For fat people, weight loss is an illusion, is like happiness, just an illusion. It's nice. But in my family, right, okay, I have this one uncle, okay? His name is Ron, but we call him Ronnie, okay? And Uncle Ronnie, he doesn't like me, okay? Because I have this very noticeable face. I don't know if you've noticed this, right? It's a very Falguni Pathak type face, right? Right? Like when you guys look at my face, you're probably thinking of two things. One, he looks like somebody. Two, kya gadha dikhta hai na? Shrek and I are best friends. We grew up playing Akban Tabli together. And this is probably because of my nose. You can't have a nose this big, right? My face is basically 95% nose and 5% more nose only. My nose is so big, if I ever intoxicate myself, I won't have to do lines, I'll do paragraphs. Right now, I'm on page 53. But this uncle, right, this uncle Ronnie, he loves himself. Not more than his wife, but he loves himself. Right? He loves himself so much, he gives himself a high five. He has made a separate account on LinkedIn just to endorse his first. He goes for festivals and he tells others, "Bura na mano, Ronnie hai. Mujhko pehchan lo, main hu Ron." This guy's self-esteem is so high, I could call it Snoop D-O-G-G. Right? And uncle, he's one of those classic Indian guys, you know. Like if he sees you guys sad, right? He won't come up to you and tell you stuff like, "Listen, don't be sad." Like he's one of those guys. Okay? The other day I came up to him, I'm like, "Uncle, something's going on in my life." He's like, "Nathan, don't be sad." How does it make sense? Don't be sad. That's like a doctor coming up and telling you, "Sunna, don't have fever." That's like a dentist coming and telling you, "Don't have a cavity." That's like you going to the signal, a beggar approaching you, you telling the beggar, "Don't be poor." It makes no sense. Don't be sad. But uncle, he's one of the oldest uncles in the family, right? Like he's so old, he's friends with Monk. He knows Adam and Eve personally, right? He knows MDH uncle personally. I look at his side parting, it looks so good, I could call it the partition. Most Sindhis have come from there only. You know? Abhi old bola to sucks at technology bolne ki zarurat nahi hai. So I recently got myself a new phone. Okay? The first thing uncle seen the phone, the first thing he did, he threw holy water at it. I'm like, "Baba, it's a phone, not the Conjuring, relax." And that was an Apple, not Annabelle, chill out. And I had to explain what these new cameras in the phone do, right? So I told him, "Listen, the first camera, okay, it's got 13x zoom, which means it can zoom so clear, it can zoom into your insecurities and pimples. The second camera is a tracker camera, which means it can track human stupidity from any distance. The third camera is a wide lens camera, which means it's meant for fat people who order food from Kings 11 Mini Punjab." Right? But uncle had a problem. His phone, his phone ran out of storage. So in order to help him, all right, I gave him my ADATA HD hard disk. Okay? I've given him the hard disk. And here's something about a hard disk. You know what's hard about a hard disk? Writing jokes about it. For those of you who don't know, a hard disk is a device that can store tons of information. It's exactly like the internet, except इसमें opinions नहीं मिलते. It's exactly like the human brain, except we would prefer using a hard disk. The memory in a hard disk is like common sense. Not many people have it. All right? I wrote another joke on a hard disk, but I guess that slipped out of my memory as well. And this hard disk said, ADATA hard disk, are. What a hard disk. It looks like it does push-ups. It's so robust. Right? It's so strong. It's so powerful. If this hard disk had to be a cricketer, I would call it Hard Disk Pandya. You know, they say you learn from your past mistakes in life. Which is why I realized I'm never doing the last joke ever again. Okay, so now I've connected everything. I'm trying to transfer the files. Okay, and for some reason it wasn't happening. There was an issue. So I'm telling uncle, "Listen, it's not happening." Okay, and uncle got angry. He's like, "What is this? You are the youth of the nation. You can't do this here. This is not possible. You are the youth. You're supposed to do all this. How is this possible? You know I have to send good morning text every day in the morning. What is wrong with you?" I'm like, "Uncle, listen, don't be angry. Okay?
and I'm transferring the files, and he's seen 2 photographs of mine. And when he's seen those 2 photographs of mine, I could tell he was only thinking of 2 things. 1, he looks like somebody. 2, kya gada dikhta hai na? That's been my time. My name's Nathan Gomes. Thank you so much for listening. I've seen you last time also. I like your energy. You get a very different kind of energy. I just wish that the jokes on the brand indication would have come slightly earlier. Nevertheless, very good set. All the best to you. Thank you so much. I can see already that this is a star in the making. I can see you, doing great in life. I think in today's set, I was a little disappointed with the way the brand was integrated. I think you could have done more with it. As always, thank you so much. Wish you all the best. Yeah. Cheers, guys. Thank you so much for listening. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा कॉमेडी के फैंस की है यही पुकार. Wow. कॉमेडी के फैंस की है यही पुकार. अब की बार पारिजात सरकार. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा आज है मौका टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका. गाइस टेक्नोलॉजी थीम्ड कॉमेडी शो है तो एक टेक्निकल चेक कर लेते हैं. एम आई विजिबल? देखो ऑडिबिलिटी के लिए तो माइक है, लेकिन जब आप 5 फुट 3.5 इंच के होते हो तो विजिबिलिटी के लिए कोई खास मदद नहीं मिलती है. मैं वो आदमी हूं जिसे 3.5 इंच स्पेसिफाई करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन द बेस इज स्मॉल एवरी हाफ इंच मैटर्स. नाम सरकार, आप समझ गए होंगे मैं बंगाली हूं और हम बंगाली हैं. हमारे लिए दोपहर नेशनल हॉलीडे होता है. इन्होंने हमें दोपहर को बुला लिया. मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी, प्राइज मनी का लालच दे के क्या आत्मा खरीद लिया हमारा. लेकिन आई वॉज ब्रॉट अप इन गुजरात. मैं गुजरात में बड़ा हुआ, ज्यादा नहीं, बस 5 फुट 3.5 इंच, लेकिन गुजरात में बड़ा हुआ. तो मेरे अंदर के गुजराती ने भी बोला, भाई क्या कर रहा है, बहुत सारा पैसा है भाई, 2 EMI निकल जाएगा, चला जा दोपहर को. सो गाइज, हम इंडियंस हैं, हमें टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है. हमने दुनिया को 0 दिया और अब पॉलिटिशियंस दे रहे हैं हमें. दैट्स फाइन, हम बुरा नहीं मानते. हम गेम खेल के दिल बहला रहे हैं. हमें गेम खेलने का बहुत शौक है. और ऐसी वैसी जगह घर पे बंद होके गेम नहीं खेल रहे हैं. हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे. और मैं बात नहीं कर रहा हूँ वो चिंदी गेम्स हो फेसबुक इंस्टा पे, नहीं. हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है. हमारा फेवरेट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन. भाई क्या गेम खेल रहे हैं हम वहां पे, जादू नगरी है वो. लिंक्डइन पे हर गंगाधर शक्तिमान है. मेरी सोसाइटी का स्त्री वाला खुद को आयरन मैन बता रहा है. अबे विरार का सतीश खुद को डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बोल रहा है. क्यों? क्योंकि वो विरार में अपनी गली का पबजी चैंपियन है. इतना तो बनता है. भाई का पैशन देखो. MSI गेमिंग लैपटॉप लेने के चक्कर में भाई ने कपड़े बेच दिए. अब कपड़े बेच दिए तो बाहर तो जा नहीं सकता, तो बाइक भी बेच दी. दिमाग बहुत है बंदे के पास. बाइक बेच दी तो पार्किंग स्पेस का क्या करना है, वो भी बेच दी. इतने पैसे इकट्ठे हो गए, ही वेंट फॉर द बेस्ट MSI स्टेल्थ लैपटॉप, जो टॉप रेंज है मतलब. और भाई मचा रहे हैं, और भी लोग मचा रहे हैं. बचपन का दोस्त जिग्नेश, वो भी मिल गया मुझे लिंक्डइन पे. शक्ल वही थी घटिया सी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया उसको, क्योंकि जिग्नेश वो बंदा था जो पेंसिल चुराता था, जिसकी नाक बहती थी स्कूल में. लेकिन इस लिंक्डइन बायो वाज समथिंग लाइक दिस: I evangelize, conceptualize and crystallize path-breaking visualizations that leads to path-breaking innovations in the esports arena that leads to paradigm shifts in the digital gaming industry. साले इंटर्न है तू, ऑफिस पनवेल में है तेरा. वो ऑफिस है भी नहीं, वो चवन्नी वाला वो गेमिंग कैफे है जहां पे 15 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आप गेम खेल सकते हो. वहां अभी भी 2 MBPS की लाइन चलती है, स्लो वाली. वहां पे विंडोज 95 लगे हुए हैं कंप्यूटर में, क्योंकि वो अनब्रांडेड असेंबल्ड कंप्यूटर हैं जो एक्चुअली 95 में बने थे. नेथन से पुराने वहां के कंप्यूटर्स हैं. आप समझ रहे हो मतलब. भाई लेकिन स्लो 2 MBPS इंटरनेट पे गेम खेलने का मजा ही कुछ और है. हेडशॉट आप आज लेते हो, बंदा 2 दिन बाद मरता है. उन 2 दिनों में आपकी आत्मा मर जाती है 3-4 बार. आप पूछते हो मैं क्यों इतना गरीब हूं, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. भाई लिंक्डइन अल्टीमेट है, और उससे भी अल्टीमेट है इंटर्न्स. मेरी हिंदी टेस्ट कर लेते हैं लोग कई बार, क्योंकि मुझे हिंदी का शौक है. मुझसे पूछा दोस्त ने, इंजीनियर का हिंदी बता जरा. मैंने कहा अभियंता. मुझे कहा मैनेजर का हिंदी बता. मैंने कह दिया प्रबंधक. फिर कहता है अब तुझे गूगली फेंकता हूं मैं, इंटर्न का हिंदी बता. मैंने कहा भाई बेचारा, क्योंकि इंटर्न से बेचारा कोई नहीं होता. इंटर्न के सपने भी इतने लो लेवल के होते हैं
इंटर्न का सपना होता है कि स्टाइपेंड मिले ना मिले, भाई साहब ये लोग चले जाएं, कंपनी के वाईफाई पे पबजी खेलने का मौका मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। पबजी इंटर्न लोगों का गेम है। आप देखो गेम को ध्यान से, कितनी गरीबी है उस गेम में, भयंकर गरीबी भाई साहब, प्लेयर नंगे घूम रहे हैं उसमें चिकन डिनर के लिए खून खराबा करना पड़ रहा है। चिकन डिनर नहीं, बीफ के लिए खून खराबा होता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन चिकन मत करो यार ये सब। और तो और ये नॉर्मल इंटर्नशिप वाला गेम नहीं है, ये सेल्स इंटर्न्स वाला गेम है। घटिया घटिया लोकेशंस पे जाना पड़ता है और कोई भी ठोक के चला जाता है तुम्हारी। दैट इज व्हाई इट इज अ सेल्स इंटर्नशिप गेम। देखो मैंने MBA किया है तो थोड़ा सा ज्ञान देके जाऊंगा। MSI के लिए ज्ञान है, ये इंडिया है बाबू, यहाँ हर चीज प्राइस पे आके अटकेगी हैं, तो प्राइस वॉर में मत पड़ो। अंबानी जी से सीखो, जियो की तरह प्रोडक्ट फ्री दे दो, गेमिंग लैपटॉप फ्री दे दो, यूजेज पे पैसे लगाओ। लैपटॉप दे दो, पबजी इंस्टॉल करके दे दो, चिकन डिनर के 1000 रुपए मांगो, देगा पब्लिक। और मैं बता रहा हूं वहां पे मत रुको। लौंडा जब हेडशॉट लेने जाए, जब गेम में बंदियां हो जिसको एनकरेज कर रही है, डूड यू कैन डू इट, वहां पे गेम पॉज कर दो, जायदाद मांग लो, दे देगा। मैं बता रहा हूं दे देगा। लेकिन मैं आधा बंगाली आधा गुजराती, मेरे साथ ट्राई मत करना ये सब, क्योंकि मेरे को तुम वहां पे अगर गेम पॉज करके मांगोगे मेरी जायदाद, एक तो मैं बंगाली हूं, पैसे हम कमाते नहीं है, जायदाद हमारे पास है नहीं। एक ही बंगाली ने बहुत सारे पैसे कमाए थे, वो भी सहारा प्रणाम करता हुआ जेल चला गया है। और मैं आधा गुजराती आधा बंगाली, जैसे ही मांगोगे पैसे मैं बोल दूंगा। ये क्या हेडशॉट और लड़की लोगों का माहौल बनाने के चक्कर में लालच में क्या आत्मा खरीद लिया हमारा। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम, थैंक यू सो मच। Parijat, I love your stage presence, you know, and I loved your set because you used PUBG so many times. That's banned by the way, but MSI का जो बार-बार आप brand integration कर रहे थे, I liked it. All the best. so much. Thank you. This was a performance worthy of a finale. Thank you. And you nailed Thank it to the point. Thank you so much, Parijat. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much. कब तक घिसेगा स्ट्रगल की चक्की तू, कब तक पीसेगा, आज है मौका तो सर टेक्नोलॉजी। इनके हैं हजारों फैंस, इनके हैं हजारों फैंस, पब्लिक है इनकी दीवानी। गिव इट अप फॉर सागर मवानी। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा स्ट्रगल की चक्की तू, कब तक पीसेगा, आज है मौका टेक्नोलॉजी, सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। Clap for the judges. Good. I come from a very religious family. We are so religious, we are so religious. You know the best part of this? I can play it even when I have loose motion. Okay, before I start, let me tell you, my name is Sagar Mawani, and I come from a very small town, middle class family. So I'll try to tell jokes as economically as possible. Yesterday I resigned from History Channel because tomorrow I'll join Future Group. Did you hear the silence? I work for an IT firm. I don't do jokes about my seniors because they don't work. I bought a pen drive from my friend. It's called Transcend Jet Flash 64 GB. It executes fast data transfer, but not faster than the transfer of honest police officers. I threw my pen drive up in the air. Did not come. My mother saw me and said, "Stop hanging upside down." If Amitabh Bachchan was the brand ambassador of Transcend Jet Flash pen drives, the tagline would be, "Fastest flash drive first." Even my grandpa's old chair rocks more than my life.
Only I knew my grandpa's last wish. He said, I don't want to die now. So I stopped choking his throat. One day he burned his chest. Doctor said, how? I said, we were home. I was ironing out his shirt. What he was doing? Wearing it. One day I stepped out of a beer bar and I saw my wife being stalked by a stranger. I immediately caught him and said, why don't you hit her? She turned around. In fact, she wasn't my wife. She told me to leave her husband. One day I turned a regular bulb into a disco light. I just turned the bulb on and rhythmically blinked my eyes. Before Netflix came to India, I used to sell DVDs for a living. I used to carry a big bag. Inside it, smaller bag. Inside it, smallest bag. Inside it, I used to keep DVDs of Inception. I did a charity show for the mute people. Super hit. After the show, they were all speechless. When in Japan, I usually drink a lot of alcohol. So during an earthquake, I can stay stable. My office boss beat me up for test driving his car. I just told him, airbags are working. Remember, loose motions are not solid waste. I am obsessed with tea and biscuits so much that I can give my blood for it, like I do at blood donation camp. Did you hear the silence? People read holy books on their mobile phones. Pathetic. If you want to know God, pick your book and read. But if you want to feel God, close your eyes and read your holy book in Braille. That was my set. Thank you so much. Sagar, well done. As you know, you're a one-liner comedian. You do all your jokes in one line. So over there, obviously, integrating the brand was difficult. I did it in, I think, 3 jokes. But I think the brand may be looking for more integration. But I love your this, and I enjoyed your silence between every jokes. Yeah. I felt in terms of your also given a product to integrate in the script, I would have loved it had it ended with a few jokes on the product as well, so that it would have been a well-rounded set. But otherwise, great observations, great lines. Thank you so much. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा इसमें महाराष्ट्र का एटीट्यूड और पुणे की बुद्धि स्टेज पे आ रही है समृद्धि दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा आज है मौका टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका So hi guys, my name is Samruddhi. और रिसेंटली मैंने एसिस का लायरा वॉइस ऑर्डर किया ऑनलाइन और मैंने सोचा अच्छा डिवाइस है, एक ही डिवाइस में इतने सारे फीचर्स आ जाता है जैसे कि स्पीकर, वाईफाई, एलेक्सा भी अलग से नहीं लेना पड़ेगा. पर गाइस मैंने जब से ये डिवाइस ख़रीदा है ना, तब से मेरे घर वालों ने इसको बस खिलौना बना के रख दिया है यार. मतलब मेरे दादी की तो चौथी बहू बन गया है वो लिटरली. और गाइस मेरी दादी को ना बहुत पुरानी आदत है, 30 साल पुरानी आदत है कि वो अपने बहुओं को ना रोज़ सुबह उठ के ताने मारना शुरू कर देती है. जैसे कि दहेज में बेड ही नहीं लाया, अलमारी नहीं लाई, सोफ़ा ही नहीं लाया, मेरे बच्चों को फैल के सोने की आदत है. एंड आई वाज लाइक दादी, आपको अगर फर्नीचर का इतना ही शौक था
तो आपने अपने बच्चों की शादी पेड़ से करवानी थी ना, लड़कियों से क्यों करवाई? फिर आप उसे ताने मारती, उसका ही फर्नीचर बना के देते आपको। और आपका वो डायलॉग कि दूधो ना हो फूलो फलो, उस पर सूट तो भी होता है एटलीस्ट। आप ये डायलॉग जब चाची को बोलते हो ना, उसे टेंशन आ जाता है कि अब ये बुड्ढी को वापस एक बच्चा चाहिए होगा। और दादी आपके क्या घटिया और अजीब से सपने हैं यार, कि आपको 12 पोते पोती चाहिए। आपको क्रिकेट की टीम बनानी है क्या, वो भी एक लिंबू टिम्बू एक्स्ट्रा प्लेयर के साथ? और अगर आपने पेट से शादी करवा भी ली तो आपका एटलीस्ट ये सपना तो हर साल पूरा हो जाएगा, 1 डजन बच्चों का। और गाइस ऐसे ही फिर वो लायरा को भी ऐसी ताने मारती है रोज सुबह कि बक्से में एक ही चार्जर आया, एक ही चार्जर आया। मैंने कहा दादी आपके ये लालच की वजह से ना घर में इतने चार्जर हो गए जितने आपके दांत भी नहीं है। आई बड़ी एक ही चार्जर। और मेरा भाई है गाइस, बड़ा भाई है, पता नहीं रोज रात को वो लायरा को अपने रूम में लेके जाता है और पता नहीं क्या करता है यार उसके साथ। मतलब सुबह उठ के वो बस एक ही चीज बोलती है कि आई एम टायर्ड प्लीज चार्ज मी। और गाइस मेरी मम्मी तो उससे इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती है ना, मतलब अगर वो लायरा को हाथ पैर होते ना तो वो पक्का मेरे घर की काम वाली बाई होती। और ये चीज़ तो पॉसिबल भी है ना गाइस अभी, कि रोबोट्स टेक ओवर कर रहे हैं, तो ये सब सही है। पर इसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये रोबोट्स ना हम ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट है यार। तो जब मेरी मम्मी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की जगह वो रोबोट से कपड़े धुलवाएगी तो वो हमें जज नहीं करेगा? वो क्या सोचेगा हमारे बारे में कि वॉशिंग मशीन का बिल बचाने के लिए मेरी बैटरी वेस्ट कर रही है? और गाइस जब मेरी दादी को इसके बारे में पता चलेगा ना तो सबसे पहले तो पतरे का रोबोट देख के उस पर पापड़ सुखाएगी। और फिर पता चलेगा कि वही रोबोट कहीं पे जाके गोबर के उपले बना रहा है यार। और आजकल तो ये भी बातें हो रही है ना इसकी, ये जो डिवाइसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंपनी में बातें सुन रहे हैं। तो हम इंडियंस को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमारी बातें कोई सुन रहा है। हमें ये प्रॉब्लम होनी चाहिए कि वो हमारी बातें सुन के हमारे बारे में क्या सोचते होंगे यार। एक तो मेरी दादी तो इतना बोर करती है वो लायरा को। किसी ने मेरी दादी को बोला कि ये कोरोना है ना, उसके सिम्टम्स जो है वो म्यूटेट हो रहा है, रोज चेंज हो रहे हैं। तो वो रोज उसे कोई नया सिम्टम लेके जाके पूछती है यार कि लायरा मुझे कोरोना है क्या। वो लायरा क्या सोचती होगी यार हमारे बारे में कि दादी तेरे को कोरोना नहीं है, तेरे को बस दुनिया भर की खुजली है। मतलब मेरी दादी की बातें सुन के ना मैंने वो लायरा को 3 बार उबासी लेते हुए सुना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे घर में ये है कि ये लायरा सुबह सुबह सब लोग मेरे घर में बस झगड़ा करने लगता है कि मेरे चॉइस का गाना लगेगा, मेरे चॉइस का गाना लगेगा। तो वो तब क्या सोचती होगी यार वो लायरा हमारे बारे में कि ये टेक्नोलॉजी के लायक ही नहीं है यार ये लोग। इनके लिए तो वही सही था कि जब फ़ोन पे गाने रिक्वेस्ट कर करके गाने मिलते थे सुनने, और उसके बाजू में बैठा फ़ोन तो वो तो ये बोलता होगा कि ये उसके भी लायक नहीं थे यार, क्योंकि ये उसके लिए भी झगड़े करते थे। ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। Hi Samruddhi, thank you so much. When you go back home, wish your Dadi happy Diwali from our side. And see, actually, honestly, amongst all the contestants, your product brand integration was spot on, because right from beginning to ending, आपने लायरा को छोड़ा नहीं, you know. I would have liked it if the preparation would have been slightly better, because it felt at some points that you were trying to remember the next line. But that is fine given how much little time you had to prepare for this. थैंक यू। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। ओडिशा से आया है तूफान, ये है भुवनेश्वर की आन बान और शान। Get up for my man, सत्यव्रत मोहपात्रा। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। नहीं जरूरत मेरे लिए ताली बजाने की, प्लीज। कुछ ही शक्लों को तालियां सूट करती हैं और मुझे मेरा पता है, ठीक है। या गाइज, आई एम फ्रॉम ओडिशा
एंड जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, मैं फ्लाइट से आया। अरे बताना पड़ता है यार, बताना पड़ता है, लोग जज कर लेते हैं। लोग बोल रहे कहीं ये मजदूर पैदल तो नहीं चल के आ गया, लॉकडाउन में प्रैक्टिस तो हो ही रखा होगा इसका। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, मैं पैदल नहीं आया, सोनू सूद ने बस करा था मेरे लिए। तो बट मैं सारे कॉमिक्स बोलते हैं यार वो लोग मिडिल क्लास है, मैं गरीब हूं। मैं वाईफाई वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं जानता हूँ। मैं डेली 1.5 GB पर डे, परफेक्ट मेरे यूजेज के हिसाब से, ठीक है। पर मैं जिस नेटवर्क का सिम यूज़ करता हूँ ना दोस्तों, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं जिस नेटवर्क का सिम यूज़ करता हूँ उस कंपनी ने मुझे कुत्ते की तरह दौड़ा दिया। हाँ वैसे ऐड में भी उन्होंने कुत्ता ही दौड़ाया है। यार इतना दौड़ा हूं ना मैं नेटवर्क के लिए, मुझे लगता है मैं मिलिंद सोमन को पीछे छोड़ चुका हूं। ओ तुम्हें क्या लगता है वो फिटनेस के लिए भागता है? उसने भी इसी कंपनी की सिम ली हुई है। तो समाज में भरपूर बेइज्जती के बाद मैंने खरीदा D-Link वाईफाई राउटर, 3 शेंडी वाला। मैंने कहा भाई शैतान को भी 2 होते हैं, तेरे को 3 क्यों है? कहता मैं बहुत ज़्यादा नेटवर्क सप्लाई करता, मैं ज़्यादा रेंज तक जाता है। मैं बोला नाइस। तो अब मैं जाने अनजाने में अपने बिल्डिंग में 5 लोगों को वाईफाई सप्लाई कर रहा हूँ, 2 ऊपर 2 नीचे और सामने वाले अंकल को। मेरा काम आसान हो गया, लाइफ इज़ बेटर नाउ। मैं बताता हूँ कैसे। ऊपर के 2 लोग राशन रख के जा रहे हैं मेरे घर में, कहते तुम्हारा शक्कर वक्कर खत्म हो जाता, तुम हमारे घर आते हो, आने की ज़रूरत नहीं है, ये दाल चावल सब रखो, यूज़ करते रहो, बटन बंद नहीं होना चाहिए बस। अंकल 2 महीने का किराया माफ़ कर चुके हैं, लाइक बेटा किराया विराया तो चलता रहेगा, बटन बंद नहीं होना चाहिए बस। मेरे घर के नीचे एक सिंगर रहता है, वो इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपना गाना वाना गा रहा है, गिटार विटार बजा रहा है। द सेंस ऑफ अथॉरिटी आई हैव नाउ बिकॉज ही इज यूजिंग माई वाईफाई। लोग उधर कमेंट कर रहे हैं, व्हाट अ मेस्मराइजिंग वॉइस, लवली, सूदिंग टू द ईयर्स, यू आर द नेक्स्ट अरिजीत सिंह। और मैं लिख रहा हूं मोटर बंद कर दो, पानी भर गया है। बेस्ट पार्ट इज वो उठ के जा रहा है बीच शो में। बट अंकल ज्यादा फ्रैंक होने लग गए अब, बहुत ज्यादा। अभी अंकल बोल रहे कि बेटा ये किराया विराया तो चलता रहेगा, ये पैमेला एंडरसन हॉट इमेजेस पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहा अंकल देखो इस उम्र में ये सब चीज आपको शोभा नहीं देता। वैसे देखा जाए तो इस उम्र में बहुत लोगों को बहुत कुछ शोभा नहीं देता, पर वो कर रहे हैं ना। जैसे कि तुम कॉमेडी, मैं कहा हाँ मेक सेंस आई गेस। पर यार ज़्यादा दूर तक वाईफाई सिग्नल जाता है ना, तो कई बार आप देखना जहाँ पे आप सेटअप कर रहते हो, आपके घर के सामने रोड है तो वहाँ तक भी चल जाता है कई बार, 3-4 एंटीना रहे तो ये D-Link वाईफाई राउटर वही काम कर रहा है, रास्ते भर आए लोगों को फुटपाथ तक वाईफाई सप्लाई कर रहा है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर के बाहर 12 से 15 लोग मेरे घर की ओर देखते हुए खड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों। और ये तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है दोस्तों, 12 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मैं फील लेने लग गया हूँ अभी मैं मस्त शॉल मार के ऐसा फ्रेंच कट करके बालकनी में जाके ऐसा हाथ हिला देता है, बैकग्राउंड में गोविंदा 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 गोविंदा। नीचे खड़ा बंदा जज कर रहा है मेरे को, वो बोल रहा है ये देखो इसको, एटीट्यूड अमिताभ वाले और शक्ल अमित शाह वाले। बट फायदे हुए, अभी लॉकडाउन में हम लोग बाहर निकल रहे हैं थोड़ा बहुत है ना, तो अनलॉक हो गया बोल के लॉकडाउन। बट ऊबर वाले उनको पता है कि अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए करके, वो बहुत शाणे हो गए। मेरा घूमने का मन था, मैं बोला भैया C-Link चलेगा? कहते नहीं बेटा घर पे बैठो, वाईफाई डाउनलोड करो, मूवी देखो, D-Link चलेगा। मैं ये सटल नहीं था बिल्कुल भी। बट मेरा दोस्त बताया मेरे को, बोलता है प्लीज़ वाईफाई थोड़ा सा पासवर्ड वासवर्ड चेंज कर दे ताकि सब लोग यूज़ ना कर सकें। मैं कहा पासवर्ड क्या रखना है बता? कहता कुछ बहुत हार्ड रख। मैंने रख दिया बहुत हार्ड। ये एमीवे बंटाई नाम का रैपर दुनिया भर को मेरा पासवर्ड क्यों बताता फिर रहा है? मैं मैथमेटिशियन हूँ तो मेरे को लगा कि मुझे पासवर्ड चेंज करना चाहिए, तो बहुत सोच समझ के मैंने रखा पासवर्ड पाई, नॉट इवन 22/7 और 3.14 पाई सिंबल करके बता डिकोड। अगले दिन अंकल के साथ मेरा झगड़ा हो गया यार। अंकल कह रहे इस महीने का भाड़ा पाई चुत्ता करना होगा तुम्हें।
कह रहे अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ हाथापाई हो जाएगी। दोस्त आके बोल रहा है ब्रो मूवी देखेंगे, मतलब कौन सा? कहता डाउनलोड कर पाइरेट्स ऑफ द कैरिबियन। मैं क्या नहीं, हम देखेंगे लाइफ ऑफ पाई। वैसे तू आजकल कौन सा लैंग्वेज में कोडिंग कर रहा है? पाइथन। बट अभी एक और चीज़ है कि ये वो दोस्त है एक्चुअली जो मेरा ही वाईफाई यूज़ करता है, डाउनलोड करता है और मुझे ही इन्फॉर्मेशन देता है अपना बना के। ये बोल रहा है ब्रो आई रेड एन आर्टिकल ऑन बज़फीड। मैंने बोला आई यू लॉस्ट मी देयर। कहता सुन तो ले। कहता आई रेड एन आर्टिकल ऑन बज़फीड, इट सेज recently being human donated 60 crores to Mumbai Forest Department for afforestation purposes. I'm like that's great. But come to think of it, देख रहे हो भाई कितने आगे की सोच रहा है। पहले जंगल बनाएगा, फिर उसमें जानवर आएगा, फिर भाई 12 रुपए का थम्स अप उठाएगा और तूफानी करेगा। Do you know Salman Khan is convicted of 3 murders? The guy on the footpath, the black buck, and Vivek Oberoy's acting career. तो पता है वह हिरन बच सकता था अगर उसके पास वही सिम होती जो हम मिलिंद सोमन और मैं यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि वो भी भाग रहा होता। That's my time, guys. You've been a lovely audience. Thank you so much. Thank you, judges. वेल डन सत्यव्रत, आपने पैमेला एंडरसन नाम करके पुरानी यादें जगा थे। काफ़ी बच्चे लोगों को नहीं पता होगा कौन थी पैमेला एंडरसन, यू नो, बट आपने आई थिंक द ब्रांड इंटीग्रेशन ऑफ स्टिकिंग टू द वाईफाई राउटर और कंटिन्यूसली आपने उसको यूज़ किया राइट टिल द एंड, एंड नाइस क्लोजर टू द सेट जो आपने शुरू किया वो रनिंग से उसको एंड किया। ऑल द बेस्ट, गुड क्लोजर फॉर अ नाइस टाइट सेट। ऑल द बेस्ट। The set was going great to the point when you got into the pie jokes. I think that was not needed as part of the overall set, but the jokes were still funny. I loved the way you integrated the product into the set. I could actually visualize you looking like Sarkar standing in the balcony. So great job done with that. And thank you so much. Wish you all the best, Satya. Thank you, sir. Thank you so much. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। तो लाइन है, गरम है मामला, ओके, कांटे की है टक्कर। गरम है मामला, कांटे की है टक्कर, मैदान में उतर रहे राघव ठक्कर। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। सर ने मतलब पूरा प्रमोशन कर लिया कि अभी अंबानी एंटिलिया में जाके परफॉर्म कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, देखो यार मेरा नाम राघव है। मैं आपको आज एक फैक्ट बताता हूँ कि यार 1910 में सबसे पहला हेडफोन इन्वेंट हुआ था, ठीक है। मतलब उससे पहले ऑफिस में लोगों को एक दूसरे से बात करनी पड़ती थी, क्योंकि हेडफोन का यूज वही तो होता है ऑफिस में सबको इग्नोर करने के लिए। सुबह तुम बैठे हो, गुड मॉर्निंग राघव, नहीं चाहिए तेरा गुड मॉर्निंग, आ जाएंगे, अभी तक गुड ही थी। फिर भी कुछ लोग नहीं समझते, तुम हेडफोन पहन के बैठे हो, मैं गीगाबाइट का हेडफोन पहन के बैठा हूं, फिर भी बाजू में आएगा ऐसा शोल्डर पे टैप करेगा, हे क्या कर रहा है। अभी देखो इस टाइम पे तुमको काम रहना पड़ता है, क्योंकि क्या कर रहा है का रिस्पॉन्स गन ढूंढ रहा हो तो नहीं हो सकता अनलेस यू आर इन नोएडा और दिल्ली, ठीक है। तो यार सीन ऐसा है कि कुछ लोग पर ज्यादा ही लाउड होते हैं। जैसे मेरा फैमिली है, मैं गुजराती हूँ, मेरा फैमिली बहुत लाउड है। नॉर्मल लोग ऐसा बात करने का वॉल्यूम लेवल पे पैदा होते हैं, मेरा फैमिली कॉन्सर्ट लेवल पे पैदा हुआ था। आज जब भगवान ऐसा हमारा फैमिली को बना रहे थे तब चित्रगुप्त को बोला था कि चित्रगुप्त ये फैमिली जो भी सारी नीचे बातें करे मुझे ऊपर तक सुनाई देनी चाहिए। एंड चित्रगुप्त इज लाइक भगवान सोच लो, लास्ट टाइम अर्नब को वो विश दिया था, जादू का ग्रह से कंप्लेन आ गया था, सोचो उनके तो कान भी नहीं है। बट डूड हमारा घर में ऐसा सब लोग ऐसा ज्यादा लाउड है सब, आपको मेरा आवाज देख के ही लग रहा होगा। हमारे घर पे बच्चा पैदा करना होता है ऐसा नहीं बोलते लेट्स मेक बेबीज, हमारे घर पे बोलते मेक सम नॉइस। हमारे घर पे बच्चे का डिलीवरी होता है, डॉक्टर नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन लगा के डिलीवरी करता है, एंड में बच्चा रोए ना रोए हेडफोन रो देता है, बाया माफ कर दे मन ने गलती हो गई हमारे से। मेरे को पता है मेरा हेडफोन मारवाड़ी है, ठीक है। पर डूड मैंने बहुत प्रॉब्लम सहन किया, ठीक है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैं जब छोटा था आप सबने एग्जाम में चीटिंग किया था, मैं कभी चीटिंग ही नहीं कर पाया। मेरे को मेरा दोस्त पूछ रहा है ब्रो 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 चौथे में क्या आएगा, हम लाइक सर देख रहा है बाद में बताता हूँ। मैं कभी नहीं कर पाया डूड। पर सी द प्रॉब्लम इज नॉट लाउडनेस, द प्रॉब्लम इज कि मेरा फैमिली अभी इसको सुपर पावर की तरह यूज कर रहा है। हम लोग लास्ट वीक शॉपिंग पे जा रहे थे, पूरा फैमिली, रास्ते में ट्रैफिक था, मेरी माँ से कार से मुंडी बाहर निकाल के एम्बुलेंस का सायरन बजाना चालू कर दी, और पूरा रास्ता साफ, मेरे को सारा पोर्टल्स दिख रहा है।
बाकी एम्बुलेंस हमको रास्ता दे रहा है. लाइक इतना जोर से सायरन बजा रहे कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए. हम लाइक हाँ चारों ज्यादा ही डूड. पर फिर मैं तंग आ गया. मैं कहा नहीं, अभी मेरे को हेडफोन चाहिए नया. ठीक है, मैं गीगाबाइट का हेडफोन खरीदने का सोच रहा था, क्योंकि देखो यार मैंने देखा है लोगों का हेडफोन यूज करते हुए. ठीक है, कहाँ पता है? लोकसभा में पॉलिटिशियन लोग हेडफोन यूज करते हैं. देखा ऐसा हेडफोन पहन के बैठते हैं. आई एम लाइक डूड, इंडिया का जीडीपी डाउन ही जाएगा ना. तुम अंदर बैठ के दलेर मेहंदी का गाने सुन रहे हो. बीच में एक डीजे बिठा दिया है. बीच बीच में मजा आ जाता है तो टेबल पीटने लगता है. तनक तनक तंग ता जा जा. अलग लेवल है डूड. मैं अभी मैं गेम खेलता हूँ. ठीक है, मेरा जो गीगाबाइट का हेडफोन है उसको लगा देता हूँ. मस्त नॉइस कैंसलेशन है, तो मैं गेम खेलता हूँ बहुत अच्छे से. और मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कभी भी एयरपोर्ट पे हो तो गेम मत खेलो. ठीक है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है. मैं जा रहा था फैमिली के साथ मुंबई से अहमदाबाद. ठीक है, मैं बैठा था, मेरे बाजू में एक अंकल बैठा था. ये अंकल को देख के ऐसा लग रहा था कि टर्बुलेंस के बाद फ्लाइट तो नीचे आ जाएगी सही सलामत, पर अंकल नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये अंकल मेरे बाजू में बैठे, मैं इधर बैठा हूँ. मैं पबजी लगाया, मेरा गीगाबाइट का हेडफोन लगाया और मैं खेलना चालू कर दिया. अभी मेरे को थोड़ी पता था कि मेरा लाउड वॉइस का शक्ति का इधर गलत इस्तेमाल होने वाला है. 5 मिनट के बाद मैं भरे एयरपोर्ट में चिल्ला रहा हूँ, ब्रो ब्रो AK-47 उठा, AK-47. अरे क्या कर रहा है? मारना. मशीन गन उठा, मशीन गन. ग्रेनेड फेंक, ग्रेनेड. मार मार मार. उसके बाद की सारी चीजें मुझे बिट्स एंड पीसेस में याद है. मैं ऐसा उधर पड़ा था नीचे, उधर एक बंदे का पैर था. ये अंकल को बाजू से स्ट्रेचर में ले जा रहे थे. मेरी माँ उधर भी लगी हुई थी. That's it from my side. Thank you guys. Raghav, great energy on stage, and I can imagine as you sing Gujarati, noise cancel headphone, how loud you will get. Yeah. Raghav, great set, great brand integration, great energy, and I don't think anybody has made the ambulance sound better than you have tonight. Thank you, sir. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा. आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका. अब आ रहा है आज का ओनली वर्चुअल एंट्री. Wow, वर्चुअल एंट्री भी है. तो इनके बारे में इतना ही बोलूंगा कि कभी ये बनते हैं अजय, ओके. कभी ये बनते हैं नवाज, हाँ निकालते हैं ये पूरे बॉलीवुड की आवाज. हाँ. पेश है मिमिक्री के किंग, द वन एंड ओनली दीपेंद्र सिंह. वाओ. हेलो दोस्तों, दिस इज दीपेंद्र सिंह. तो दोस्तों इमेजिन करो कि हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ सर एक ब्रांड एम्बेसडर हैं एक प्रोडक्ट के जिसका नाम है टोकुयो मसाजर. अरे वही मसाज करते हैं, दर्द खत्म हो जाता है बिल्कुल, वही टोकुयो मसाजर. तो दोस्तों पहले उनका डायलॉग सुनते हैं. अरे सबका दर्द चाहता नहीं और मेरा आता नहीं, क्योंकि मैं यूज करता हूँ टोकुयो मसाजर. आप लोग भी यूज करो. तो टाइगर श्रॉफ सर सभी सेलिब्रिटीज को सेल करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले जाते हैं संजय दत्त के पास. तो संजय दत्त सर बैठे हैं. अरे बाबा कैसे रे टाइगर? अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ बाबा. आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ. हाँ. अरे वो जब तू एंट्री लेता है तो वो एक डायलॉग बोलता है ना, वो बोल के दिखा ना. हाँ सबकी आती नहीं और मेरी आती नहीं. हाँ हीरो बनती. हाँ वो जैकी कैसा है अपना जैकी? अरे वो बहुत बढ़िया है. अच्छा मेरे बारे में कुछ बोलता है कि नहीं? अरे बोलते हैं ना, बच्चा बड़ो मेरा बच्चा बड़ो बच्चा बड़ो, ये बोलते हैं ना. अच्छा ये बोलता है. हाँ ठीक है. अच्छा सुन, वैसे वो तेरा एक गाना है ना, मेरे नाल तू विजल बजा. हाँ 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 वो मेरा फेवरेट है. अरे थैंक यू बाबा. हाँ तो सुनना यार, कल मैं उसमें डांस कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था वो तेरा वाला जो स्टेप है ना, ऐसे घुमा घुमा के जो करता है तू, हाँ वो मैं कर रहा था. तो मेरा पैर जो घूमा है ना, टर्न 360 डिग्री. हाँ बस तब से जो है अपना पैर जो उठ ही नहीं रहा है. क्या करूं यार? अरे बस इतनी सी बात, मैं आपका दर्द एक चुटकी में खत्म कर सकता हूं. एक चुटकी में ट्राई करते. अरे क्या कर रहे हो? चुटकी में खत्म कर रहा हूं ना, हो ही नहीं रहा है. अरे नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आपका दर्द खत्म हो जाएगा. क्या है वो? क्या? अरे टोकुयो मसाजर. टोकुयो मैसेंजर. अरे नहीं बाबा,
टोकुयो मसाजर. हाँ, टोकुयो मैसेंजर. अरे नहीं बाबा, मसाजर. अरे हाँ, वही वही वही. उससे क्या होता है, कैसे करने का उसको यूज? हाँ बता ना. अरे बाबा, इतने में सलमान खान सर की एंट्री होती है. अबे ओ टाइगर, ओ बाबा, किस बारे में बात हो रही है, हमें भी तो बताओ. अरे सलमान सर, मैं टोक्यो मसाजर की बात कर रहा हूँ. उससे ना आपका सारा दर्द, बॉडी का पूरा दर्द मिट जाएगा. वो मसाज करेगा. हाँ. अच्छा, क्या बात है. लेकिन मेरे पास तो मस्त मसाजर है. उसका नाम है, जिंदा है वो भी जिंदा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी. मैं भाई की मस्त मसाज करता है, मालूम है आपको. एकदम रगड़ रगड़ के मसाज करता है. मैं वो भी बेबी ऑयल लगा के. हाँ, अबे छोटा बच्चा है क्या जो बेबी ऑयल लगाते हो? हाँ. ये भाई के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं क्या. नहीं तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर है तेरा फैजल. इतने में हमारे नाना पाठक आते हैं गुस्से में. अरे अच्छा है, मालूम कैसे बताऊं मैं तुम्हें. अच्छा है. अरे किस बारे में बात हो रही है, मुझे भी तो बताओ. हाँ अच्छा है. और यहाँ से हमारे विजय राज रन मूवी वाले वो भी आते हैं. कमाल करते हैं यार, बाई गॉड बता रहे हैं हमें. सर पे चोट लगी थी, बताइए, टाका हमारे पेट में लगा दिया. कमाल करते हैं यार. इतने में टाइगर सर बोलते हैं, अरे टाका पेट में लगा है तो लगाइए टोकुयो मसाजर, उससे मसाज कीजिए और आपका दर्द एक चुटकी में मिट जाएगा. अबे कमाल के आदमी हो यार तुम यार. कमाल है बे. कौन है बे हैं? अबे टाका लगा है बे, मसाज करवा करवा के पूरी सिलाई खुलवाओगे हमारी. कमाल करते हैं यार. अरे मेरा मतलब वो नहीं था. अरे अच्छा है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें ना. अच्छा है. अरे टाइगर, तू मेरा क्या है, चाचा है, भतीजा है, क्या है? मैं तुम सबका नाना हूँ. नाना अच्छा है. अरे लगता है इनके सर पे भूत चढ़ गया. अरे सर पे नहीं रहा लालची लौंडो, पूरे बदन में चढ़ा है, पूरे बदन में. अरे तो यूज करो ना, पूरे बदन में चढ़ा है तो टोकुयो मसाजर. हाँ करो ना. अबे ढोलकियों के, अक्षय कुमार बोल रहा हूँ, कर लो भाई, टोक्यो मसाजर यूज कर ही लो तुम. है जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली. I think so. Great impersonations. Yeah, I think I loved Nawaz Siddiqui, जो Nawaz का तो superb निकाला. You know, the difficult part of, first of all, he did so many characters. Right. As band indication, jokes were slightly lacking on the massager, which could have been better, but his mimicry was, I think, spot on. And I think, see, mimicry was his strongest point, but then I felt at times when he's switching between characters, the first line after the switch was not coming out great. Correct. All right, so that brings us to the end of the show. Almost. Because we've still to announce the winners. Oh, okay. So how many winners are we going to announce today? So there'll be 5 contestants who will be selected. The top 5 will have their videos uploaded on social media. And whoever gets the highest engagement across all social media platforms stands to get 2 lakh rupees. Wow. But जो बाकी 4 है, उनको भी मिल रहे हैं 50,000 रुपए. Fantastic. Yes. तो पहली बैच में मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे आकाश गौरव सिंह. दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए. जीत मोदी and Nathan Gomes. So out of you 3, only one has made it to the top 5. I would request sir to let us know who that is. The winner of this, out of these 3 devs, the winner is Akash Gaurav Singh. That one. Quickly, the next 3 we want to get on stage is obviously Arjun, Sagar Mawani and Samruddhi. The one out of you 3 who's making it to the top 5 is Arjun Rana. वो मेरे लिए था ना वो, नहीं sorry. मस्ती कर रहा हूँ. Okay, the last batch of comedians who I would request to come on the stage. You have Parijat Sarkar, Satyabrat Mohapatra, Raghav Thakkar, and Gaurav Malik.
So first of all, can I request Raghav, can you just go on that side, and Garv, can you come on this side? Yeah. No, just as descending order of height. वो मैं चाहिए था. Satyabhat, I think, sorry, you will have to take the journey back to Orissa. Come back next year more stronger. So we are going to select obviously Raghav, Parijat, and Garv Malik. You three guys have made it to the finalists. But all the best. Thank you so much for coming all the way from Orissa, and keep up the good work and keep up the challenge. I know it's very, very difficult to do in comedy in a city जहाँ open mics नहीं होते हैं और audience नहीं होता है. We are in Bombay, Pune में काफ़ी lucky है कि scene थोड़ा strong है. But keep up the scene, and it's a long run. You know, बहुत लंबी रेस है, and you have the skill in it, so please go for it. You know, don't leave it or don't get disheartened by this experience at all. All right, so that brings us to the end of season 2 of Taiwan Excellence Presents Technology Superstars. Sir, I hope you had a good time. I had a fantastic time. I always believe that at any stage, the stand-up comedy scene in India mein sirf 10 saal ka hai. It started in 2010, and all of us are learning, including me. And I know how difficult the craft is to come up on stage, make a room of 10, 20 people laugh. It's so difficult. So first of all, give a round of applause to yourselves for taking part, and also to the audience for bearing with this entire thing, because you've been sitting here for quite some time. And just keep at it. It's a long game, but it's fun. I'm sure every time you go on stage, you enjoy it so much that you want to come back again. It's a very different kind of high which we get, this. And I'm learning as much as any of you guys. I'm just a judge because I have white hair. Baki kuch hai nahi actually. So yeah, so all the best to you guys. Yeah. It's just that Atul sir gets to attend international classes in this learning journey. I would now request the top 5 of tonight's show to please come and join us on stage. Please start clapping for Parijat Sarkar, Akash Gaurav Singh, Raghav Thakkar, Gaurav Malik, and Arjun Rana. Now it was the judges, me and Mandar sitting and deciding. Obviously, it was a very, very difficult decision to make, to select the 5 out of so many entries which we got from throughout India, maybe throughout the world, because this year also we took virtual entries. But now the real thing starts, where their videos will get uploaded on their social media, and you guys have to go and tag, just vote, like, and put your comments on the video, so that only positive comments and negative comments hum nahi padenge, just to let you know. And so that these guys win the coveted prize of 2 lakhs for the winner and 50,000 for the rest of the runners-up. So now the ball is in your court. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा. आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका.